students, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, as an MBA aspirant, we always, you can say, have to focus a lot on the happenings of many events around us. दोस्तों, when you are preparing for, let's say, CAT, that is MBA entrance in 2022, by the time you go to 2023, you must have a lot of concepts available for you with respect to the world economy, how the economy works, how the Indian economy works, how the businesses work, what are the big ideas, okay, are presented. So in this series of videos, I'm going to give you, you can say, modules which are going to give you clarity, you can say, with respect to various concepts. So today I'm bringing this very important topic which says US rate hike and impact on Indian markets. Yes, that is what I am bringing for you. Okay, so दोस्तों मैं क्या बात करने वाला हूं आज? I'm going to discuss about how the USA economy is shaping up. ठीक है, what is the impact from USA to India and the various Indian markets. Okay, that is what we are going to discuss about. Okay, so these are the few questions which I'm going to answer. ठीक है, so we all understand that on last week Wednesday, ठीक है, US Federal Reserve, ठीक है, decided to increase their benchmark interest rate. Now what is a benchmark interest rate? ठीक है, I'm sure all of you are aware about that is known as repo rate. Okay, that is called benchmark interest rate. Repo rate, since you can say 2018, they did not change it. Now they are changing it and changing it to what? To the higher side. Okay, so they are rising. This is world's largest economy. ठीक है, it is world's largest economy and they are rising this. ठीक है, now it has a huge impact in the varieties of the, you can say, markets, whether it is a market of India or whether it is market of Europe, market of Japan, China, everywhere there is an impact. Okay, ठीक है, now the point is, ठीक है, whenever they increase the interest rate, what are the impacts is what we have to understand. चलिए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, कब कोई फेडरल रिजर्व या कोई भी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी. ठीक है, तभी बढ़ाएगी जब मार्केट में यू कैन से लिक्विडिटी, पैसों का लिक्विडिटी, पैसों का तरलता, ठीक है, मतलब इजीली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा पैसों मनी का सप्लाई है, तब जाकर वो बढ़ाते हैं. ये सनो, ठीक है, जब बहुत ज्यादा मनी का सप्लाई है विच मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ रहा होगा. ये सनो, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता होगा तब इसको ये लोग कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं रेपो रेट को बढ़ाने की बात करते हैं. दोस्तों क्या किया सबसे पहले वो समझते हैं, देन विल वंस अगेन कम बैक टू यू कैन से दिस इशू. ठीक है, सो फेडरल हैज डिसाइडेड टू हाइक देयर बेंचमार्क यू कैन से रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट. कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाया? 25 बेसिस पॉइंट. My dear students, let us understand what is the meaning of basis point. ठीक है, basis point का मतलब हो गया कि it is, we can say, let's say 100 basis point is equal to 1, मतलब is equal to 1%. So 25 basis point is 0.25 से बढ़ा दिया. Okay, चलिए great. So ठीक है, so they had a target that they are going to increase it and they actually increased it. Okay, ठीक है. Now the move is aimed at checking on the inflation. जैसे अभी हमने बात करी, क्यों बढ़ाते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, which faces an additional threat. ठीक है, क्या एडिशनल थ्रेट होगा? यूक्रेन. ये सुनो, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से एडिशनल थ्रेट हो रहा है. यूएसए में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. कितना बढ़ रहा है? इट इज टू द रेंज ऑफ अराउंड 7.5%. दोस्तों इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज कोई भी इकोनॉमी के अंदर, जैसे इंडिया जैसी इकोनॉमी है, ठीक है, वहां पे हमें इन्फ्लेशन रेट चाहिए करीबन 4%. ठीक है, 4% प्लस और माइनस 2%. सो दैट मीन्स 2% से लेकर 6% के बीच में होना चाहिए. एंड नाउ यू कैन से यूएसए में इट इज क्रॉसिंग 7.5. यूएसए में होना चाहिए इट इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 2 to 5% के बीच में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज क्रॉसिंग 7.5%, विच इज रियली अ बैड आइडिया. ठीक है, सो विद एप्रोप्रिएट फर्मिंग in the stance of monetary policy, the committee expects inflation to return to its 2% objective and the labor market to remain strong. This is what they said कि हमने जब ऐसा किया तो हमें लग रहा है कि ऐसा you can say inflation वापस you can say कंट्रोल में आएगा. तो अगला सवाल हम चलते हैं, ठीक है, कि will RBI will also hike the rate. दोस्तों आपने देखा होगा
आरबीआई ने पिछले कुछ समय में अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं है, ठीक है, क्योंकि देयर इज ऑब्वियसली नो इंडिकेशन इन इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू द आरबीआई का रेट हाइक। ओके, क्यों नहीं है इंडिकेशन? बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। पिछले काफी समय से इट हैज बीन मोर देन यू कैन से 20 मंथ्स हमने अपने रेट को चेंज नहीं किया है, ठीक है। ओके, वी आर नॉट यू कैन से गोइंग टू चेंज इट, हाउएवर we are sitting in the month of March. Okay, after every 2 months RBI comes with their monetary policy, so they are going to come with a monetary policy, and thereby in the April will they increase or not, that's a big question, ठीक है। यूक्रेन में वॉर चल रही है, यस, ठीक है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। ओके, एंड देयर बाय वी हैव टू सी वेदर आवर आरबीआई इज टेकिंग एकोमोडेटिव स्टांस और नॉट। एकोमोडेटिव का क्या मतलब हो गया? एकोमोडेटिव का ये मतलब हो गया कि पिछले 2 सालों से काफी दिक्कतें चल रही थी देश के अंदर, ठीक है, कोरोना की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही थी, सो वी आर ट्राइंग टू पंप इन मोर एंड मोर मनी, विथ पंप इन मोर एंड मोर मनी, ठीक है, वी विश कि भैया दुनिया लेकिन से इकोनॉमिक एक्टिविटी बराबर चले। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास रिसेंटली सेड दैट द सेंट्रल बैंक्स आर इन अ बाइंड as the recent geopolitical development have further aggravated its challenges and dilemma. So central banks are in a big problem, ठीक है, आगे बड़े बड़े challenges है, ठीक है। If they act aggressively to contain inflation which may perhaps subside the normalcy return, तो अगर हमने बढ़ा दिया हमारा अगेन से इन्फ्लेशन रेट को हमने कंट्रोल करने के लिए, है ना, हमने अगेन से एग्रेसिवली रेपो रेट बढ़ा दिए, तो नॉर्मलसी पे जो रिटर्न होना है, ठीक है, वो नहीं होगा। ऐसा नो क्यों नहीं होगा? लोग आसानी से लोन लेंगे नहीं, लोग आसानी से पैसे लेंगे नहीं मार्केट में से, ऐसा नो, ठीक है, एंड दे रन द रिस्क ऑफ सेटिंग इन रिसेशन। ऑन द अदर हैंड इफ दे एक्ट टू लिटल, ठीक है, and too late, they may be blamed for falling behind the curve, and which may have a lot of catching up to do it later on. अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होगा। So thereby there is a big problem happening with the RBI. क्या RBI करेगा? ठीक है, मेरा मानना है कि RBI ने 20 से करीबन 20 हफ्तों से इसको चेंज किया नहीं है। There is a good chance to do it। 20 महीनों से किया नहीं है, नॉट 20 हफ्ता, ठीक है। नाउ आफ्टर द फेड का इस तरीके का से स्टेटमेंट रेट हाइक की वजह से अलग अलग मार्केट ने क्या रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, देखते हैं। जब इनिशियल मार्केट के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो मार्केट, यूएस का मार्केट डाउन चला गया। डाउ जोन्स ने बोला दैट वी आर गोइंग डाउन, बट लेटर ऑन इट गेन्ड अप। मतलब मार्केट जब ऊपर उठता है इट इज गिविंग अ पॉजिटिव सिग्नल, मार्केट नीचे जाता है इट इज गिविंग अ नेगेटिव सिग्नल। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे गया होता तो इट इज गिविंग अ नेगेटिव सिग्नल, बट इट इज गोइंग इन अ पॉजिटिव से, ठीक है। इनफैक्ट एशियन मार्केट्स, ठीक है, नॉट जस्ट यूएसए बट एशियन मार्केट्स आर ऑल्सो गोइंग अप, ठीक है। निक्की विच इज कॉल्ड, जापान का है जो 3.5% से बढ़ गया। हांगकांग का हैंगसेंग है दैट इज ऑल्सो 7% गेन के ऊपर बंद हुआ था, लास्ट वीक की बात हो रही है, ठीक है। अपना जो सेंसेक्स थे, ठीक है, दैट इज ऑल्सो 1.84% से बढ़कर आगे बढ़ा था, ठीक है। सो इन अ वे इट इज नॉट जस्ट इंडिया, ठीक है, विच इज यू कैन से improved, but all of them have improved, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट से दैट रेट हाइक डिड नॉट कम एट अ सरप्राइज, सो दे वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, अच्छा आया, जिसकी वजह से जो एफपीआई थे इंडिया में से उन्होंने पुल ऑफ कर दिया। करीबन 1,36,487 करोड़ इंडियन इक्विटी में से ये लोग नवंबर महीने में निकाल चुके थे। दे ऑल्सो रिमूव सम पार्ट ऑफ इट, बट उसके सामने मार्केट में बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं, वी आर हैप्पी, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, एंड दे आर परचेजिंग दिस, ठीक है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 14 साल हाई पे पहुंचे हैं, ठीक है। जो 130 बैरल डॉलर 130 डॉलर पर बैरल पे पहुंचे थे, अब धीरे धीरे वो $100 पे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मार्केट इसको पॉजिटिव वे में देखता है। So generally
whenever the interest rate goes up in USA, in emerging economies like India, ठीक है, people pull out their FPI, which is called foreign portfolio investment, ठीक है, उसको वो पुल ऑफ कर देते हैं, ठीक है ना, और ताकि यहाँ की इकोनॉमी गिरना चालू हो जाती है. हाउएवर, ठीक है, एफपीआई ने पैसे तो निकाले, बट यू कैन से इंडियन इकोनॉमी में इतना प्रॉब्लम आया नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट लोगों ने उसको रेट को बढ़ाया. Now, what should investor do? That's a big question. ठीक है. So while the markets have witnessed the recovery over the, you can say, last 1 week, ठीक है, ओवरऑल लोगों की रिकवरी आई है, ठीक है, यूक्रेन वॉर के बाद, ठीक है, यूक्रेन वॉर चालू है, वॉर अभी भी कंटिन्यूड है, ठीक है. सो देयर इज अ थ्रेट टू द मार्केट इज स्टिल कंटिन्यूड. ऐसा नहीं है कि थ्रेट नहीं है, ठीक है, बट इन्वेस्टर्स नीड टू रिमेन वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वॉलेटिलिटी. ठीक है, मतलब इट्स एन एजाइल, यू कैन से, सिस्टम दे हैव टू डेवलप. कि अचानक से दुनिया बदल रही है तो दे हैव टू बी रेडी विथ इट. दैट्स व्हाट दे हैव टू शो एजिलिटी. ठीक है, सो दे आर वरीड अबाउट वॉलेटिलिटी. दे हैव टू अवॉइड एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट. दे कांट पुट लॉट ऑफ मनी इन ए ह्यूज वे. ठीक है, सो दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं, आप एक साथ बहुत सारे पैसे नहीं लगाएंगे. आप क्या करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के मुताबिक आप पैसे लगाएंगे. मे बी यू विल पुट मनी इन अ ब्लू चिप कंपनी, यू विल पुट मनी इन द कैपिटल फंड्स, यू विल पुट मनी इन अ लार्ज कैप फंड्स. यू विल नॉट गो फॉर, you can say, small cap. You will not go with the mid cap, okay, because there is a lot of volatility. ठीक है, if you want to take risk, you can possibly go with the, you can say, small cap. Okay, so experts are saying that investors should not expect return of the kind they've seen in the second half of 2020. जितना पागलपंती से रिटर्न मिल रहा था 2020 में या 2021 में मिला, वैसा तो आएगा नहीं, बट बराबर है, बट स्टिल इट विल बी वेरी पॉजिटिव. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि यूएस ने रेट हाइक किया 25 बेसिस पॉइंट से. उसके ऊपर इंडिया का आरबीआई क्या करेगा, ठीक है, मार्केट ने कैसे बिहेव किया और क्यों किया, वो भी हमने बात करी. एंड व्हाट शुड इन्वेस्टर डू, that is what I also discuss with you. I hope such kind of modules are useful to you. Say, put your comment and tell me कि भैया आपको ऐसे मॉड्यूल चाहिए या नहीं चाहिए. Okay, I will be more than happy to prepare this content for you. Okay, thank you and all the best.